morning students, welcome to today's class, class 7, English Grammar. Chapter 1, Sentence and Questions. Sentence and Questions. First chapter is all about the sentence and questions. So, what is a sentence? We already learned what is a sentence. A sentence is a group of words that makes complete sense and has a verb. तो हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में लर्न कर लिया कि ये सेंटेंस यानी क्या है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है दैट मेक्स कंप्लीट सेंस एंड हैज ए वर्ब. तो वो क्या है, ए सेंटेंस. A sentence is a group of words that express a statement, a question or an order. It contains a subject and a verb. Is called a sentence. So a sentence always contains a subject and a verb. There are 4 types of sentence, right? There are 4 types of sentence. What are they? Assertive or declarative sentence, interrogative sentence, exclamatory sentence and imperative sentence. So we already know what is a sentence. A sentence is a group of words. Simply writing a group of words doesn't make it sentence, है ना. ऐसे ही कुछ group of words लिखा तो वो क्या है, sentence नहीं बनता. लेकिन वो sentence कब होगा, जब उसमें से कोई मतलब निकल रहा है तो वो क्या है, सेंटेंस है. नहीं तो वो सेंटेंस नहीं है. फॉर एग्जाम्पल horse A is animal and. अब इधर देखो, horse A is animal and ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, यानी अलग अलग वर्ड्स तो ज़रूर है, लेकिन ये सेंटेंस है क्या, नहीं है, क्योंकि इसमें से कोई सेंस नहीं निकल रहा है ना, कोई मतलब तो नहीं निकल रहा है ना. इसको सेंटेंस कैसे बनाना है, देखो, ए हॉर्स is an animal. A horse is an animal. A horse एक एनिमल है ना. तो अब क्या बन गया, अब इस ए पढ़ने से हमको मतलब निकल के आ रहा है कि हॉर्स क्या है, एक एनिमल है. तो ये क्या है, सेंटेंस. एंड ऑलवेज रिमेंबर, ए सेंटेंस बिगिंस विथ capital letter and ends with full stop, question mark or with an exclamation mark. A sentence हमेशा कैसे शुरू होता है, कैपिटल लेटर से शुरू करना है and ends with, depending upon the sentence, full stop, question mark or with an exclamation mark. Okay, now there are 4 types of sentence. 4 types of sentence. What are they? First one is assertive or declarative sentence. First one is assertive or declarative sentence. Assertive or declarative sentence का मतलब है a sentence that makes a statement या gives us some kind of information, है ना. एक सेंटेंस जिसमें स्टेटमेंट है, नहीं तो कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो वो कौन सा काइंड ऑफ सेंटेंस रहेगा, assertive sentence. Okay, is the sentence that makes a statement. Assertive sentence यानी makes a statement, नहीं तो कोई इंफॉर्मेशन देना, कोई इंफॉर्मेशन देना. तो वो कौन सा काइंड ऑफ सेंटेंस रहेगा, assertive sentence. A statement proves information or state facts. तो a statement provides information और state facts. तो वो कोई information provide कर रहा है, नहीं तो कोई facts बता रहा है.
है ना, कोई तत्व बता रहा है तो वो कौन सा काइंड ऑफ सेंटेंस रहेगा, असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस. सो व्हाट डू यू मीन बाय असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस? ए सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट, है ना, वो स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन और स्टेट द फैक्ट, states fact, that is called an assertive or declarative sentence. Example, he speaks very well, right? he speaks, वो बहुत अच्छे से बोलते हैं, तो वो क्या है, काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन है ना, तो वो कौन सा काइंड ऑफ सेंटेंस है, assertive sentence. Next one is the second kind of sentence is interrogative sentence. Interrogative sentence. अभी interrogative sentence यानी क्या है? An interrogative sentence asks a question. Asks a question about something or someone. When we ask a question about something or someone, हम किसी के बारे में या कुछ चीज़ों के बारे में कोई क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो क्वेश्चंस है तो वो कौन सा काइंड ऑफ सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस. व्हेन वी आस्क ए क्वेश्चन अबाउट समथिंग और समवन, okay, when we want to ask a question about something or someone, that kind of sentence is known as an interrogative sentence. अभी interrogative sentence यानी किसी के बारे में या something के बारे में कुछ questions पूछ रहा है, तो वो क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस. एग्जाम्पल, वेयर डिड शी गो, वो कहाँ गई थी, वेयर डिड शी गो, है ना, तो वो क्वेश्चन है. एक और एग्जाम्पल है, व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि क्वेश्चन है, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन. नहीं तो हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू, ये सब क्वेश्चंस है, राइट. तो ये सब कौन सा काइंड ऑफ सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस. थर्ड वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. An exclamatory sentence express strong feelings of admiration, pity, sorrow, happiness, horror, excitement, pain or any other emotions. Exclamatory sentence यानी it shows our feeling या emotions. जो sentence जिससे हमारा feelings दिखा रहा है, नहीं तो emotions दिखा रहा है, तो वो कौन सा kind of sentence है, exclamatory sentence. Okay, now see, what a nice picture, वो कितना अच्छा पिक्चर है, तो वो हमारा एक पिक्चर देखे, हमारा एक फीलिंग है, अरे वाह कितना अच्छा पिक्चर है ना, हमारा खुशी दिखा रहा है एक पिक्चर देखे, है ना. अभी एक बेबी को देख, हाउ क्यूट द बेबी इज़, एक बेबी को देखे हम बोल रहा है कि हाउ क्यूट द बेबी इज़, तो वो क्या है, हमारा फीलिंग्स दिखा रहा है, तो वो कौन सा काइंड ऑफ सेंटेंस है, exclamatory sentence. And always remember, exclamatory sentence ends with an exclamation mark. exclamation mark से वो exclamatory sentence end होता है. और अभी देखो एक दूसरा एग्जाम्पल है, how colorful the rainbow is. rainbow देख के हम बोल रहे हैं how colorful the rainbow is. how colorful the rainbow is, exclamation mark. तो ये क्या है, what kind of sentence it is? It is an exclamatory sentence. The fourth and the last one is imperative sentence. Imperative sentence. An imperative sentence gives a command, an order, direction, instructions or a request. ना एक सेंटेंस में जहाँ कमांड दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है, नहीं तो डायरेक्शन दे रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है और कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, विनती कर रहा है, तो वो कौन सा काइंड ऑफ सेंटेंस रहेगा, इम्परेटिव सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, कंप्लीट योर होमवर्क, तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट करना है ना, तो वो कमांड कर रहा है, तो क्या कर रहा है, तुम्हारा जो भी होमवर्क है वो कंप्लीट करना, तो वो कौन सा काइंड ऑफ सेंटेंस है,
imperative sentence. दूसरा एक एग्जाम्पल है, प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज गिव मी यूर पेन, तुम्हारा पेन मुझे दे दो, रिक्वेस्ट कर रहा है ना, प्लीज गिव मी योर पेन। तो वो कौन सा काइंड ऑफ सेंटेंस है? इम्परेटिव सेंटेंस। अभी दूसरा एक हम बी कूल, ऑर्डर कर रहा है बी कूल, कूल रहना, तो वो क्या है? imperative sentence. So a sentence, what is called a sentence? A sentence is a group of words that makes complete sense and has a verb. So that is a sentence. And there are four kinds of sentence, the four types of sentence. What are they? The first one is assertive or declarative sentence. What do you mean by assertive or declarative sentence? The sentence that makes a statement or give us some information or state the facts is called assertive या declarative sentence. यानी assertive या declarative sentence यानी कोई statement है ना, makes a statement जिसमें से कोई information या कुछ facts बता रहा है, तो वो क्या है? assertive या declarative sentence. Interrogative sentence यानी ask a question about something or someone. When we ask a question about something or someone, that kind of sentence is called an interrogative sentence. The third one is exclamatory sentence. An exclamatory sentence expresses our strong feeling or our emotions. When we want to express our feelings or emotions, that kind of sentence is known as an exclamatory sentence. And the last one is imperative sentence. An imperative sentence gives a command, an order, direction, instruction, or a request. That kinds of sentence is called an imperative sentence. Let's test your knowledge. Exercise A. Write A for assertive, I for interrogative, E for exclamatory, and IM for imperative sentence in space given. So here what we have to do, we have to read this 10 sentence and write what kind of sentence it is. हमको क्या करना है, ये the 10 sentence दिया है, वो sentence पढ़ के अपन को ये फाइंड आउट करना है वो कौन सा काइंड ऑफ सेंटेंस है, वेदर इट इज असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और an imperative sentence. The first one is, how old is Reena? How old is Reena? रीना कितना साल की है? तो वो कौन सा काइंड ऑफ सेंटेंस है? यस, क्वेश्चन मार्क है ना, सी द क्वेश्चन मार्क. तो वो कौन सा काइंड ऑफ सेंटेंस है? क्वेश्चन है, तो वो कौन सा काइंड है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस. तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्या लिखना है आंसर में? आई. Interrogative sentence. The answer is I. Interrogative sentence. Second one, she loves to tell jokes. She loves to tell jokes. तो वो क्या है? वो जोक बोलने को पसंद करती है. तो क्या है? स्टेटमेंट है, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना, वो लड़की के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वो जोक बोलना बहुत पसंद करती है. तो वो क्या है? स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट है तो कौन सा काइंड ऑफ सेंटेंस है? असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस. तो हमको क्या लिखना है? ए फॉर असर्टिव. ए असर्टिव सेंटेंस. गिव हर ए कॉल. उसको एक कॉल करना. गिव हर ए कॉल. तो ये क्या है? इंस्ट्रक्शन दे रहा है, नहीं तो कमांड कर रहा है, ऑर्डर कर रहा है ना, तो उसको एक कॉल देना, कॉल करना. तो वो कौन सा काइंड ऑफ सेंटेंस है? इम्परेटिव सेंटेंस. सो आई एम. इम्परेटिव सेंटेंस. फोर्थ वन इज, हाउ कलरफुल द रेनबो इज. यानी वो रेनबो कितना कलरफुल है. इट शोज अवर फीलिंग्स, राइट? इट शोज अवर फीलिंग्स, हैप्पीनेस. सो व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस इट इज? इट इज एन exclamatory sentence. See the exclamation mark here. So write E. Fifth question,
आई हैव ए गुड कलेक्शन ऑफ बुक्स, मेरे मेरे पास बहुत सारा अच्छा बुक का कलेक्शन है, गुड कलेक्शन ऑफ बुक्स, मेरे पास बहुत सारा बुक का कलेक्शन है। तो वो क्या है, इंफॉर्मेशन है ना, इंफॉर्मेशन दे रहा है कि मेरे पास बहुत सारा बुक्स का कलेक्शन है। तो इंफॉर्मेशन है तो वो कौन सा काइंड ऑफ सेंटेंस है, assertive sentence, assertive sentence A. Sixth one, they are football players, वो फुटबॉल प्लेयर्स है। अगेन इंफॉर्मेशन है ना, तो वो क्या है, assertive sentence, assertive sentence. Seventh one, you should obey your elders, you should obey your elders, तुम तुम्हारा elders को obey करना। तो वो क्या है, कमांड दे रहा है ना, कि तुम तुम्हारा बड़ों को क्या करना है, ओबे करना है। तो वो क्या है, कौन सा काइंड ऑफ सेंटेंस है, एन इम्पेरेटिव सेंटेंस, आई एम। एट वन, वाव व्हाट ए ब्यूटिफुल फ्लावर, इट शोज अवर फीलिंग, एक फ्लावर देख के हम बोल रहा है कि अरे वाह कितना ब्यूटीफुल फ्लावर है। तो वो क्या है, इट शोज अवर फीलिंग्स। तो कौन सा काइंड ऑफ सेंटेंस है, इट इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, सो राइट ई। नाइन्थ क्वेश्चन, द लायन रोड लाउडली, द लायन रोड लाउडली, तो क्या है, स्टेटमेंट है जहाँ बोल रहा है कि लायन लाउडली रोड किया, तो वो कौन सा काइंड ऑफ सेंटेंस है, assertive sentence. Next one is the last one, do you understand the lesson, do you understand the lesson, क्या है, क्वेश्चन है। if it is a question, what kind of sentence it is, it is an interrogative sentence, so write I. नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस यानी क्या है, when we want to ask about something or someone, हम क्वेश्चन पूछना चाहता है about something or someone, तो वो क्या है, क्वेश्चंस है। A question is something that you say or write in order to ask a person about something. A question is a sentence. तो a question यानी क्या है, a question is something that you say, जो हम बोलते हैं, और write नहीं तो लिखते हैं, in order to ask a person, किसी से हम पूछना चाहता है about something, कुछ किसी के बारे में हम कुछ पूछना चाहता है, तो वो क्या है, क्वेश्चन है। ए क्वेश्चन इज ए सेंटेंस, ए क्वेश्चन क्या है, एक सेंटेंस है ना, व्हाट इज योर नेम, हाउ ओल्ड आर यू, ये सब क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस क्या है, इज ए सेंटेंस, क्वेश्चन इज ए सेंटेंस। Types of questions, there are 3 types of questions, okay. Questions can be asked in different ways depending on what answer is needed. हम क्वेश्चन अलग अलग तरह से पूछ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द आंसर व्हाट वी नीडेड। तो हम क्या कहते हैं, क्या आंसर हम चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ओके। तो देयर आर डिफरेंट 3 types of questions, and questions can be asked in different ways depending on what answer we needed. तो जो आंसर हम चाहते हैं उसके डिपेंडिंग हम क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज yes or no क्वेश्चन। फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है, yes or no क्वेश्चन। फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है, yes or no question. These questions require the listener to answer yes or no. yes or no question यानी जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो हमको आंसर किस तरफ चाहिए, yes या no, हाँ या ना आंसर हम चाहते हैं, है ना, उस तरह का क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, तो वो क्या है, yes or no क्वेश्चन। अभी मैं किसी से पूछ रही हूँ कि तुम्हें पेंसिल चाहिए, तो वो चाहिए तो हाँ बोलेगा, नहीं चाहिए तो
नो बोलेगा, है ना। तो मैं क्या चाहती हूँ, आंसर किस तरफ चाहती हूँ, हाँ या ना। आई वांट द आंसर इन यस या नो। तो वो अगर हम वो काइंड ऑफ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, व्हेन वी वांट द आंसर इन यस या नो, तो वो कौन सा काइंड ऑफ क्वेश्चंस है, यस और no questions. The use of helping verb indicates whether the question is, can you reach the school in time? Can you reach the school in time? क्या तुम स्कूल में टाइम पे पहुंच पाओगे? तो पहुंच पाओगे तो क्या है, हाँ, नहीं तो नो। वुड यू लाइक टू रेस्ट फर्स्ट? तुम पहले रेस्ट करना चाहते हो? हाँ तो हाँ, नो नहीं तो क्या है, नो। डू द शॉप्स क्लोज एट 8 टुडे? क्या आज वो शॉप 8 बजे बंद होगा? हाँ तो यस, नहीं तो नो। तो यस और नो क्वेश्चन यानी इतना ही है। द क्वेश्चन रिक्वायर्स द लिसनर टू आंसर यस या नो, यानी हम आंसर किस तरफ चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, यस या नो। In the above examples, the helping verb comes before the subject, the other verbs comes after the subject. तो ये जो 3 एग्जाम्पल्स इधर दिया है, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब्स है दैट कम्स बिफोर द सब्जेक्ट, इधर जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो कहाँ पे आता है, बिफोर द सब्जेक्ट, कैन, वुड, डू, है ना, बिफोर द सब्जेक्ट, एंड द अदर वर्ब्स कम्स आफ्टर द सब्जेक्ट, और बाकी जो वर्ब्स है वो कहाँ पे आता है, सब्जेक्ट के बाद, है ना। यस और नो क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे आता है, सब्जेक्ट के बिफोर, ओके। अभी इधर यस और नो क्वेश्चन में, यस और नो क्वेश्चंस में हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे आता है, बिफोर द सब्जेक्ट, बिफोर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बिफोर, and other verbs come after the subject, other verb comes after the subject, okay. In yes or no question, the helping verb comes before the subject, the helping verb comes before the subject and the other verbs comes after the subject. अभी इधर ये 3 एग्जाम्पल्स देखो, इसमें helping verb comes before the subject and the rest of the verb after the other verbs comes after the subject. तो देखो helping verb और other verb, helping verb, other verb. तो in yes or no questions, always remember the helping verb comes before the subject and the other verbs comes after the subject. The verb be also come before the subject when it is an ordinary verb rather than a helping verb. The verb be also come before the subject when it is an ordinary verb. अभी the verb be can come before the subject when it is an ordinary verb. जब वो ordinary verb है तो वो क्या कहाँ आ सकता है, subject के पहले rather than a helping verb. अभी इधर देखो, are you happy, are you happy, क्या तुम खुश हो, is she ill today, क्या वो आज बीमार है, तो वो क्या है, yes or no questions, and the verb be comes before the subject. Next kind of question is, next type of question word questions. Question word questions, WH questions. Question word
questions. These questions require the listener to supply information. These questions requires the listener to supply information. यानी इस काइंड ऑफ क्वेश्चन में WH क्वेश्चन में हम कुछ वर्ड्स में नहीं, सिर्फ एक ही वर्ड में नहीं, हम पूरा कंप्लीट सेंटेंस में वो इंफॉर्मेशन चाहते हैं. पहले का क्या है, यस और नो क्वेश्चंस में क्या है, सिर्फ हाँ या ना में हम आंसर चाहते हैं, राइट. यस या नो में हम आंसर चाहते हैं. लेकिन WH क्वेश्चंस में क्या है, हम पूरा सेंटेंस में वी वांट द होल इंफॉर्मेशन, यानी हम पूरा वो इंफॉर्मेशन चाहता है. ठीक है. आंसर टू दीज क्वेश्चंस cannot be a one word आंसर. इस काइंड ऑफ क्वेश्चन में आंसर एक शब्द में नहीं हो सकता है. आंसर टू सच क्वेश्चन इज ए कंप्लीट सेंटेंस. ओके, इस काइंड ऑफ क्वेश्चन का आंसर कैसे होगा, ए कंप्लीट सेंटेंस में होगा. तो yes और no क्वेश्चंस में क्या है, we get the answer as yes या no. In WH questions, the listener should supply the information. Okay, listener पूरा information देना है अपन को in a complete sentence. The WH questions start with when, where, why, what, who और how. अब ये WH क्वेश्चंस का क्या क्या है, when, where, why, what, who, how, ये सब क्या है WH क्वेश्चन से. ये सब क्या है WH क्वेश्चंस. आज who likes football, फुटबॉल किसको पसंद है, who like footballs. The WH word substitute for the subject, यानी इधर सब्जेक्ट का जगह कौन ले लिया, WH क्वेश्चन ले लिया. Sometimes the word what, which or who are the subject of the sentence or part of the subject, or no change in the order of subject and verb is needed. अभी ये WH questions में what, which या who are the subject of the sentence, ये कौन सा प्ले करता है, सेंटेंस का सब्जेक्ट का प्ले, सब्जेक्ट का पार्ट ले लेता है. नहीं तो ए पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट, नहीं तो सब्जेक्ट का एक पार्ट हो सकता है. सो इसलिए नो चेंज इन ऑर्डर ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब, इसलिए हम सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब का ऑर्डर में कोई चेंज करने का ज़रूरत नहीं है. फॉर एग्जाम्पल विच गर्ल वॉन द मैच. अभी इधर देखो, विच गर्ल वॉन द मैच, कौन सा गर्ल मैच जीत गई. इधर सब्जेक्ट और वर्ब में कोई क्या है, वो सब्जेक्ट का जगह ले लिया है ना, तो वो क्या है, इधर हम वो चेंज करने का, ऑर्डर में चेंज करने का कोई ज़रूरत नहीं है. हु स्विच द लाइट ऑन, किसने लाइट ऑन किया. व्हाट मेक्स यू हैप्पी, तुम्हें क्या खुश कर लेते हो. तो इधर सब ये WH क्वेश्चन में क्या है, तो एस और नो क्वेश्चंस नहीं है, है ना. हमको इधर क्या है, फुल इंफॉर्मेशन में कंप्लीट सेंटेंस में आंसर मिलते हैं. अभी देखो विच गर्ल वॉन द मैच, कौन सा गर्ल मैच जीत गए, तो कोई आंसर होगा वो लड़की मैच जीत गए. तो वो पूरा क्या है इंफॉर्मेशन हमको पूरा सेंटेंस में हम चाहते हैं. And the last one is tag questions. लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है टैग क्वेश्चन. फर्स्ट वन क्या है, येस और नो क्वेश्चन. इसमें क्या है, हम आंसर येस या नो में चाहते हैं. और नेक्स्ट वन है क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन WH क्वेश्चन. इसमें हम आंसर पूरा इंफॉर्मेशन चाहता है, पूरा कंप्लीट सेंटेंस में हम आंसर चाहता है. द लास्ट वन इज टैग क्वेश्चंस. लास्ट वन क्या है, टैग क्वेश्चन. We can also add a short question to what are we saying when we want to know if the listener agrees with us. This is called a question tag. अब ये tag question मतलब क्या है, a short question, एक छोटा सा एक क्वेश्चन
हम ऐड करते हैं किससे, टू वाट वी आर सेइंग, हम जो बोलते हैं ना उसके साथ एक छोटा सा क्वेश्चन ऐड करते हैं, टू नो इफ द लिसनर एग्रीज विथ अस, ये जानने के लिए जो हम बता रहे हैं उसके साथ जो सुन रहा है वो एग्री करते हो या नहीं, ये जानने के लिए जो स्टेटमेंट हम बता रहे हैं उसके साथ हम एक छोटा सा टैग क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन ऐड करते हैं, वो क्या है, दिस इज कॉल्ड ए क्वेश्चन टैग, वो क्या है, क्वेश्चन टैग है। इतना समझ लो कि व्हेन वी से समथिंग, ओके, उसके साथ एक छोटा सा क्वेश्चन ऐड करता है ये जानने के लिए कि लिसनर जो हम बता रहे हैं उसके साथ एग्री हो या ना हो, है ना, एग्री है या नहीं, ये जानने के लिए हम एक छोटा सा क्वेश्चन ऐड करते हैं, वो क्या है, क्वेश्चन टैग। अभी देखो, इट इज़ ए ब्यूटिफुल फ्लावर, ये बहुत सुंदर फ्लावर है, हम किसी से बोल रहे हैं कि ये बहुत सुंदर फ्लावर है, इज़न्ट इट, है ना, तो हम वो उससे पूछ रहे हैं, हम जो स्टेटमेंट बता रहे हैं कि मैं अभी बता रही हूँ कि ये बहुत सुंदर फ्लावर है ना, तो वो मैं उससे वो है ना, वो लिसनर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो एग्री करते हो या नहीं, है ना, इसलिए एक छोटा सा क्वेश्चन जो हम ऐड करते हैं वो क्या है, क्वेश्चन टैग। तो आई यस इज़न्ट इट, ये क्या है, एक छोटा सा क्वेश्चन, इधर देखो ये स्टेटमेंट के साथ एक छोटा सा क्वेश्चन जो ऐड कर लिया, ये क्या है, क्वेश्चन टैग। समझ में आया, जो हम बता रहे हैं उसके साथ एक छोटा सा क्वेश्चन ऐड करते हैं ये जानने के लिए लिसनर उसके साथ एग्री करते हो या नहीं, वो क्या है, क्वेश्चन टैग। इट इज़ ए ब्यूटिफुल फ्लावर, दिस इज ए स्टेटमेंट, राइट, इट इज़ ए ब्यूटिफुल फ्लावर, इट इज़ ए ब्यूटिफुल फ्लावर, हम अगर इतना लिया तो वो क्या है, इट इज़ ए स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट है, राइट। इज़न्ट इट इज़ ए क्वेश्चन टैग, अभी ये जो इज़न्ट इट है वो क्या है, क्वेश्चन टैग ऑन टू द स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट के साथ ये जो इज़न्ट इट हमने ऐड कर लिया, तो ये इज़न्ट इट क्या है, क्वेश्चन टैग है। देयर इज ए कॉमा सेपरेटिंग द स्टेटमेंट फ्रॉम द क्वेश्चन टैग। अभी नेक्स्ट पॉइंट आप लोग याद रखना है, जो स्टेटमेंट के बाद और क्वेश्चन टैग के पहले हमको क्या करना है, एक कॉमा डालना है, ओके, देयर इज ए कॉमा सेपरेटिंग द स्टेटमेंट फ्रॉम द क्वेश्चन टैग, तो ये स्टेटमेंट को एक क्वेश्चन टैग से सेपरेट करने के लिए क्या है, एक कॉमा डालना है। योर आंसर टू द क्वेश्चन कैन बी, अभी हम पूछ रहे हैं किसी से, इट इज़ ए ब्यूटिफुल फ्लावर, इज़न्ट इट, एक बहुत ब्यूटिफुल फ्लावर है ना, तो वो लिसनर हाँ भी बोल सकता है ना भी बोल सकता है, तो द आंसर कैन बी yes it is or no it isn't डिपेंडिंग अपॉन द लिसनर, है ना, लिसनर को कैसे लगता है उसके डिपेंडिंग हाँ भी हो सकता है ना भी हो सकता है। नोट द वर्ब्स and tense in each of these tag question, the verb in the statement is repeated in the tag question। अभी ये tag question कैसे बनाना है, अभी इधर देखो, it is a beautiful flower, अभी इधर का verb देखो, is, ये verb tag question में repeat होता है ना। अभी ये टैग क्वेश्चन कैसे बनाना है, जो स्टेटमेंट में जो वर्ब है ना वो वर्ब टैग क्वेश्चन में रिपीट होता है, द वर्ब इन द स्टेटमेंट इज रिपीटेड इन द टैग क्वेश्चन, द वर्ब इन द स्टेटमेंट इज रिपीटेड इन द टैग। टैग क्वेश्चन कैसे बनता है, द स्टेटमेंट में जो वर्ब है वो कहाँ पे रिपीट होता है, टैग क्वेश्चन में। एक एग्जाम्पल बताती हूँ, एग्जाम्पल,
she is so beautiful. she is so beautiful, वो बहुत सुंदर है। अभी इसका हमको टैग क्वेश्चन बनाना है, तो इधर का वर्ब क्या है, is, she is, तो ये क्या है, वर्ब है। तो टैग क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करना है, स्टेटमेंट के बाद क्या डालना है, कॉमा, भी इधर is, अभी इधर स्टेटमेंट पॉजिटिव में है ना, शी इज सो ब्यूटीफुल, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है। हमको इधर टैग क्वेश्चन तो कैसे आएगा, इज शी, वो नेगेटिव में हो जाएगा। टैग क्वेश्चन क्या है, नेगेटिव हो जाएगा, इज शी। समझ में आया। जो ही स्टेटमेंट में जो वर्ब है, वो वर्ब अगर पॉजिटिव है तो टैग क्वेश्चन नेगेटिव बनेगा। अगर स्टेटमेंट में वर्ब नेगेटिव है तो वो टैग क्वेश्चन में पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, तो इधर शी इज सो ब्यूटीफुल, तो वो स्टेटमेंट में, इधर स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव में, हम बोल रहे हैं कि शी इज सो ब्यूटीफुल, तो वर्ब इज इधर क्या है, पॉजिटिव में, इसलिए हमने क्या किया, उसको टैग क्वेश्चन में नेगेटिव कर लिया, शी इजंट, इजंट शी। Okay, next look here, if the verb in the statement is positive, the verb in the tag is negative। मैंने अभी बताया कि अगर verb पॉजिटिव है, स्टेटमेंट में पॉजिटिव है, तो the verb in the question tag is negative। ओके, अगर स्टेटमेंट में जो verb है, इधर देखो, ये स्टेटमेंट में जो verb है इधर पॉजिटिव है, तो वो क्वेश्चन टैग में क्या बन जाएगा, नेगेटिव। ओके, इफ द वर्ब इन द स्टेटमेंट इज नेगेटिव, द वर्ब इन द क्वेश्चन टैग इज पॉजिटिव। अगर स्टेटमेंट में जो वर्ब नेगेटिव है, तो वो टैग क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ओके, अगर स्टेटमेंट और टैग क्वेश्चन, स्टेटमेंट और टैग क्वेश्चन। अभी स्टेटमेंट में वर्ब, अगर वर्ब स्टेटमेंट में पॉजिटिव है, अगर वर्ब स्टेटमेंट में पॉजिटिव है, तो वो टैग क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ओके, अगर वर्ब स्टेटमेंट में नेगेटिव है, तो वो टैग क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। भी समझ में आया ना, इतना ही है। स्टेटमेंट में अगर वर्ब पॉजिटिव है, तो टैग क्वेश्चन में वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अभी स्टेटमेंट में वर्ब नेगेटिव है, तो वो टैग क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ओके, फॉर एग्जाम्पल, वी कैन डू वंडर। अभी इधर देखो, वी कैन डू वंडर, इधर वर्ब क्या है, कैन, है ना। तो इधर ये कैन इधर पॉजिटिव है या नेगेटिव, पॉजिटिव है ना, ये क्या है, पॉजिटिव में। तो वी कैन डू वंडर, हम कर सकते हैं, है ना, वी कैन, हम कर सकते हैं, तो पॉजिटिव है। अभी वो टैग में क्या करना है अपन को, उसको नेगेटिव करना है, तो क्या किया, कॉमा करके सेपरेट किया, कांट वी, कांट वी यानी कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म है कांट, कांट वी। इसको क्या कर लिया, इधर पॉजिटिव था, इसको हमने क्या किया, टैग क्वेश्चन में नेगेटिव, कांट वी। ओके, सेकंड एग्जाम्पल, दे
shouldn't swim in the canal. अभी इधर नेगेटिव बता रहा है, should not ना, should not एक क्या है नेगेटिव में, इधर वर्ब क्या है नेगेटिव में, they should not swim in that canal. तो अभी इसका टाई क्वेश्चन बनाना है तो क्या करना है, कॉमा डाल के इसको हमको क्या करना है, इस वर्ब को क्या करना है पॉजिटिव बनाना है. तो शुड नॉट हटा दिया है ना, शुड इसको पॉजिटिव बना दिया, शुड दे इसको सब्जेक्ट को अभी हमको वापस इधर लाना है, शुड दे. समझ में आया. अगर टाई क्वेश्चन बनाना है तो क्या करना है, स्टेटमेंट में इफ द वर्ब इन द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव द वर्ब इन द टाई क्वेश्चन इज नेगेटिव, एंड इफ द वर्ब इन द स्टेटमेंट इज नेगेटिव द वर्ब इन द क्वेश्चन इज पॉजिटिव. नेक्स्ट पॉइंट, if the statement begins with there the question tag must end with there as well. अगर statement there से begin हो रहा है, अगर स्टेटमेंट देयर से बिगिन हो रहा है तो क्वेश्चन टैग भी देयर से एंड करना है ना, बिगिन्स विद देयर एंड विद देयर. अभी इधर देखो, देयर वेयर मेनी डक्स इन द पॉन्ड. अभी एक शुरू कैसे हो गया, विथ कौन सा वर्ड से हुआ शुरू, देयर से. अभी वर्ब क्या है वेयर है ना, देयर वेयर मेनी डक्स इन द पॉन्ड. अभी ये क्वेश्चन ए वर्ब कौन सा फॉर्म में है, पॉजिटिव फॉर्म में, राइट. तो टैग क्वेश्चन क्या है नेगेटिव आएगा, तो वेरेंट क्या बन गया नेगेटिव, वेरेंट. अभी इधर देयर से शुरू किया ना, इसलिए हमको क्या करना है देयर से ही एंड करना है. तो देयर वेयर मेनी डक्स इन द पॉन्ड, वेरेंट देयर. ओके. नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल, देयर आरंट any notorious students in the class. There aren't any notorious students in the class. क्लास में कोई notorious students नहीं है. तो इधर there से शुरू किया है ना, और aren't ये कौन सा फॉर्म में, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव में है ना. तो टैग क्वेश्चन कैसा है पॉजिटिव. तो आर देर से शुरू किया इसलिए क्या करना है देर से ही एंड करना है, आर देर. ओके. तो क्वेश्चंस क्या क्या है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या क्या है. फर्स्ट वन इज यस और नो क्वेश्चंस. तो यस और नो क्वेश्चंस यानी दीज क्वेश्चंस रिक्वायर द आंसर टू द लिसनर टू आंसर यस और नो, यानी हम ऐसा क्वेश्चंस पूछ रहे हैं लिसनर से, हम क्या आंसर चाहता है यस या नो. And always remember helping verb comes before the subject and other verbs comes after the subject, and verb be also come before the subject when it is an ordinary verb. When it is an ordinary verb, verb be also comes before the subject when it is an ordinary verb. verb be come जब वो ordinary है तो वो कब आ सकता है subject के पहले. The next type of sentence question is question word question, WH questions. WH questions यानी the question requires the listener to supply information है ना. हम क्या चाहता है listener से, पूरा information हमको चाहिए है ना. जो हम question पूछ रहा है सिर्फ one word में नहीं, हम वो पूरा information चाहता है ना. तो वो कौन सा kind of questions है, question word questions या WH questions. तो वो क्या क्या है, when, what, where, why, who, how, ये सब क्या है WH questions है. नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज टैग क्वेश्चन. तो टैग क्वेश्चन यानी एक स्टेटमेंट के साथ हम एक छोटा सा क्वेश्चन ऐड करता है ये जानने के लिए कि लिसनर हमारे साथ एग्री है या नहीं है ना, एग्री है या नहीं. तो वो क्या है टैग क्वेश्चन. अगर स्टेटमेंट में वर्ब पॉजिटिव है तो टैग क्वेश्चन में वो क्या हो जाएगा नेगेटिव. ओके. अगर स्टेटमेंट में वर्ब नेगेटिव है तो टैग क्वेश्चन में वो क्या बन जाएगा पॉजिटिव. इधर देखो स्टेटमेंट में अगर स्टेटमेंट में वर्ब पॉजिटिव है तो टैग क्वेश्चन में नेगेटिव. अगर स्टेटमेंट में वर्ब नेगेटिव है तो टैग क्वेश्चन में वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव. एंड द लास्ट वन कि अगर
स्टेटमेंट देयर से शुरू किया तो वो एंड्स विद देयर असल. अगर स्टेटमेंट देयर से शुरू किया तो एंड भी कैसे होना है, देयर से. तो आप लोग ये डेफिनेशंस आपका कॉपी में लिख के लेना है. व्हाट इज कॉल्ड ए सेंटेंस का डेफिनेशन, फिर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, assertive sentence, interrogative sentence, exclamatory sentence and imperative sentence. उसका डेफिनेशन उसके नीचे एक एक लाइन में दिया हुआ है, वो भी आपका कॉपी में लिख के लेके वो डेफिनेशंस को याद करना. और उसके बाद है क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या है एंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ये सब आपका कॉपी में लिख के लेके उसको अच्छे से ध्यान से याद करके लर्न करना. थैंक यू.